Morning students, this is our English class for class 6 and today we are going to start chapter number 2. Chapter number 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको फर्स्ट लेसन जो था उसके 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस जो थे वो करने के लिए दिए थे. आई गेव यू to do the question number 1, 2, 3 and 4. Now the rest of the questions number 5 and 6 you have to do in your fair notebook. Then after today we are going to start lesson number 2, the friendly mongoose. Friendly like a friend, दोस्त की तरह. mongoose हिंदी में हम इसको वैसे नेवला बोलते हैं. तो द फ्रेंडली मंगूज, ए मंगूज लाइक ए फ्रेंड. बिफोर रीडिंग द चैप्टर 3 points हैव बीन गिवन अबाउ. वी हैव टू रीड दैम आउट. फर्स्ट पॉइंट इज ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज. इट मीन्स देयर वॉज ए फार्मर, देयर वॉज हिज वाइफ and there was their small child and they lived in a village. Point number 2, there was also a baby mongoose in the house. It means they had a small baby mongoose in their house who they believed would be their son's companion and friend in future. They believed that the mongoose will be their son's companion and a friend also in the future. The third one is, one day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. One day the farmer and his wife went out and left their child at home with the mongoose. It means the child and the mongoose were at home and the farmer and his wife were out of the home. Now the story begins. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. It means there was a farmer and his wife and they had a small son and all of them lived in a small village. They loved him very much. It means the farmer and his wife loved their son very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. One day the farmer said to his wife, we must have a pet. पेट मीन्स पालतू जानवर. हम पालतू जानवर हो चाहे आपका कोई नज़दीकी इंसान अगर है, हम उसको भी पेट बोल सकते हैं. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. एक दिन फार्मर ने अपनी वाइफ को बोला, वी मस्ट हैव ए पेट. हैव मीन्स रखना, मस्ट मीन्स 100% वो काम ज़रूरी है, उसके लिए इंग्लिश में मस्ट लगाते हैं. हमें एक पेट रखना चाहिए. When our son grows up, grow up means बड़ा होना, to become stronger and taller. When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाए तो he will need a companion. Companion means friend, life partner. तो he will need a companion. It means there will be a need to have a companion for our son. This pet will be our son's companion. So this pet will be our son's companion. It means वो हमारा जो पेट होगा वो हमारे बेटे का कंपेनियन बनेगा, पूरी लाइफ के लिए उसका एक फ्रेंड बनेगा. His wife liked the idea. Farmer's wife liked this idea that they must have a pet and that pet should be their son's companion. His wife liked this idea. Then after one evening the farmer brought with him, bring means lana. The farmer brought with him a tiny mongoose. Tiny means very small. The farmer brought with himself a very small mongoose. His wife said, when he brought that mongoose to his home, his wife said, it is a baby mongoose because it was very small, but will be fully grown. विल बी सून, फुल्ली ग्रॉन, लेकिन थोड़ा जल्दी ही फुल्ली पूरी तरह से ग्रॉन बड़ा हो जाएगा ये.
he will be a friend to our son. Then after, he will be a friend to our son. Both the baby and the mongoose grew. During the course of time, टाइम बीतने के साथ साथ, both दोनों कौन? The baby and the mongoose grew. बेबी और मंगूस दोनों बड़े हो गए. In 5 or 6 months, 5-6 महीने में the mongoose had grown. मंगूस बड़ा हो गया. कितना? To its full size, अपनी फुल साइज तक बड़ा हो गया. A lovely animal, and became a very lovely animal with 2 shining black eyes. He had 2 shining black eyes. एंड ए बुशी उसमें लंबे लंबे बाल थे. बुशी टेल थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल. तो मंगूस जो था वो तो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन इंसान स्लोली धीरे धीरे बड़ा होता है. तो फार्मर सन वॉज स्टिल, अभी भी ए बेबी, एक बच्चा ही था. इन द क्रेडल. क्रेडल मीन्स झूला या बच्चे का पालना जो होता है, दैट इज़ क्रेडल. वो बच्चा भी, वो फार्मर का बेटा भी क्रेडल में बेबी था. स्लीपिंग, सो रहा था. एंड क्राइंग अल्टरनेटली मीन्स ओकेजनली, रुक रुक के, बार बार सो रहा था और बार बार रो रहा था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट. शी फेड द बेबी. फीड, FEED. फीड मीन्स पेट भरना, खाना खिलाना. शी फेड द बेबी, बच्चे को खाना खिलाया. एंड रॉक्ड, रॉक मीन्स हिलाना, झूले में या गोदी में हिलाते हैं. वो क्रेडल में था तो उसको हिलाया. टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. और उस छोटे से उस क्रेडल के अंदर सोने के लिए, रॉक मीन्स हिलाना, उसको हिलाया, झूला दिया. पिकिंग अप द बास्केट. पिक मीन्स उठाना, बास्केट टोकरी. टोकरी उठा करके शी सेड टू हर हस्बैंड. शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार. ऑफ मीन्स शी वॉज गोइंग. I am going to the bazaar. Baby is sleeping. Keep an eye on him. Keep रखना, I means नज़र, उस पर नज़र रखना. Take care of him, उसका ध्यान रखना. Frankly, I don't like to leave the child. Frankly means without any doubt. I don't like, मुझे पसंद नहीं है. To leave, छोड़ना. The child alone with the mongoose. मंगूस के साथ बच्चे को छोड़ना मुझे पसंद नहीं है. फार्मर सेड टू हिज वाइफ, यू नीडंट बी मीन्स होना, अफ्रेड, भयभीत, डरा हुआ. यू नीडंट बी अफ्रेड, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है. द मंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल. मंगूज इज ए फ्रेंडली एनिमल. इट इज़ एज स्वीट, ये इतना ही स्वीट है, इतना ही अच्छा है, एज और बेबी, जितना हमारा बच्चा है. एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. यू नो आपको पता है, वो सबसे अच्छे दोस्त हैं. दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वो सबसे अच्छे दोस्त हैं. द वाइफ वेंट अवे. हिज वाइफ वेंट टू द बाजार. एंड द फार्मर, और फार्मर ने क्या किया? हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. हैविंग नथिंग, कुछ भी ना होते हुए. टू डू, करने के लिए. इन द हाउस, घर में करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था. ऐसा होते हुए डिसाइडेड टू गो आउट, उसने बाहर जाने का डिसाइड किया. एंड टेक ए लुक. टेक ए लुक मीन्स देखना. एट हिज फील्ड्स, खेतों को देखने का डिसाइड किया. नॉट फार अवे, खेत दूर नहीं थे, इट मीन्स पास ही थे, उनको उसने देखने का डिसाइड किया. ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स, भाग के दोस्तों में चला गया. ऑन द वे, और उसके बाद रोड, रास्ते पे जो दोस्त आ रहे थे, भाग के उन दोस्तों में चला गया. एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ टाइम तक वो लौट के नहीं आया. दैट्स इट फॉर टुडे. इस पैराग्राफ में मुझे जो हार्ड वर्ड्स नज़र आए वो मैं आपको दे रहा हूँ. यू हैव टू डू देम डाउन इन योर फेयर नोटबुक्स. ग्रो अप मीन्स बड़ा होना. टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड टॉलर. कंपेनियन मीन्स साथी, मेट, फ्रेंड, कंपेनियन. क्रेडल, ए क्लॉथ और बेड इन विच ए बेबी इज़ रॉक्ड. कोई ऐसा कपड़ा, कपड़े का झूला जो आता है वो, या फिर बेड जिसमें बेबी को रॉक किया जाए, हिला जाए, इसका मतलब पालना या झूला. अल्टरनेटली मीन्स ओकेजनली, रुक रुक के, यानी कि बार बार. फीड मीन्स खाना खिलाना. तो आपको ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक नोट डाउन करने हैं. और लास्ट लेसन के जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं. थैंक्स.